سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے، اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود کو ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے، جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں، تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی۔ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی،
जबकि इश्क तो बिखर जाने और फना हो जाने के लिए हमा वक्त तैयार है, और खजाने भी तो वीरानों में मिलते हैं। एक शकिस्ता दिल में ही तो खजाना मदफून होता है। सब्र इस बात का नाम नहीं है कि इंसान उज़्वे मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र क्या है? सब्र यह है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के घुप अंधेरे पर नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। बेसब्री यह है कि इंसान इतना कोताबीन और कम नजर हो कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को माहे कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजरना पड़ता है। जिस तरह एक मां को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकलीफ जरूर उठानी पड़ती है। जिस तरह एक दिन को अपनी रोशनी पूरी शिद्दत के साथ बखेरने के लिए शदीद गर्मी और हिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को नहीं पहुंच सकती। तन्हाई और खलबत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन खलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखो कि सिर्फ किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो, और तुम्हारी शख्सियत में खुदा ने जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईनाए क़ल्ब में तुम्हें दिखाई देगा। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफर की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान जरूर रहे कि हर सफर जात का दाखिली सफर जरूर बने। अगर तुम अपनी जात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बातनी सफर करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मारवा है वो भी शरीके सफर हो जाते हैं। अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अंदर की सख्ती दूर करना होगी। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज्यादा नर्म दिल दरकार है। जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रख्ते कल्ब अता कर दें, हमें खुद गर्जियों से निकालें, नुक्ता चीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीखकर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। हक ताला के करीब होने के लिए जरूरी है कि हमारे कुलूब इतने कुशादा हों कि तमाम इंसानियत इसमें समा सके और इसके बाद भी इनमें मजीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफरत और ताज्जुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। तुम तर्के दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन को तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैकदे में जा पहुंचे तो वो मैकदा
उसके लिए महराब और मुसल्ले की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर कोई बहका हुआ मैखार मस्जिद में भी चला जाए तो वो उसके लिए मैखाना बन जाती है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, जाहिर का नहीं। सूफी लोगों को उनके हुलिये और उनकी वज़ाक़ता से नहीं जांचते। जब एक सूफी किसी पर निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकता मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं, कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता तो सब लोग एक जैसे हो जाएं, तो वो उनको एक जैसा ही बनाता। चुनाचे अब उन इख्तलाफात की तौहीन और तनफीज करना और अपने अफकार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम को क़ज़ा व क़द्र और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मतरादिफ है। सरे तस्लीम खम करने और राजी बिर्रज़ा रहने का ये मतलब नहीं कि हम बेअमल होकर उज़्वे मुअत्तल हो जाएं, और ना ही ये जबरियत या तातील है, बल्कि ये तो उसके बिल्कुल बरअक्स है। असल कुव्वत तस्लीम और रज़ा में है, ऐसी कुव्वत जो हमारे अंदर से फूटती है। वो लोग जो जिंदगी की हकीकत के सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं, वो ऐसे दायमी सकून और सकनियत में रहते हैं कि अगर सारा जहान मौज दर मौज फितरों में मुब्तला हो जाए तब भी उस सकून में कोई खलल नहीं पड़ता। इस दुनिया में जहां हर कोई किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचने और कुछ ना कुछ बनने की जद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसे यहीं छोड़ना है। ऐसे में तुम सिर्फ और सिर्फ नायाफ्त और नेस्ती को अपना मुकद्दर करार दो। जिंदगी में इतने सुबक बन जाओ जितना कि सिफर का हिस्सा होता है। हम एक बर्तन की तरह हैं। बर्तन पर ख्वाह कितने ही नक्शो निगार क्यों ना हो, लेकिन उसका कारआमद होना सिर्फ इस खाकी वजह से है जो उसके अंदर है। ये खला ही उसे बर्तन बनाता है, और यही नायाफ्त और खला हमें भी दुरुस्त रखते हैं। किसी मकसद का हुसूल हमें मुतहर्रिक नहीं रखता, बल्कि यही खालीपन का शऊर है जो हमें रमा दमा रखता है। खुदा बहुत बारीक बीन और बड़ा ही कारीगर घड़ी साज है, इतना दुरुस्त कि जमीन पर हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर वकू पजीर होती है। ना एक लम्हा वक्त से पहले और ना एक लम्हा ताखीर से, और ये अजीम घड़ी बगैर किसी इस्तिस्ना के सभी के लिए बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तौर पर कायम करती है। हर एक के लिए मोहब्बत और मौत एक लम्हा मुकर्रर है। पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीजें ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग ख्वाह तुम उनके लिए रग़बत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी ना किसी दर्जे में मिलेंगे। चुनाचे शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमला आवर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी जात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ तो तुम एक अजीम और बरतर शऊर का दरीचा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो वो अपने रब को भी जान लेता है। माजी एक ताबीर है, एक नुक्ता नजर है, जबकि मुस्तकबिल माया है, एक सराब है।
दुनिया एक खत मुस्तकीम की शक्ल में वक्त के धारे में से नहीं गुजरती जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो, बल्कि वक्त हमारे अंदर से बतदरीज फैलती हुई लामतनाही कौसों की सूरत में गुजरता है। अबदियत लामहदूद वक्त को नहीं बल्कि वक्त से मारवा होने का नाम है। अगर तुम अबदी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फकत लम्हाए मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हाए मौजूद ही सब कुछ था और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों ना लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी खुदाबंद करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नई राह जरूर खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी ना सिर्फ इन बातों पर शुक्र गुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहमो इदराक गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान की फहम की 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है और ज्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए है। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का बतन और चौथा दर्जा इस कदर रमीक मायनों का हामिल है कि जबान उनके बयान पर कादिर नहीं हो सकती। चुनाचे ये नाकाबिले बयान है। उलमा फुक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व गौस करते रहते हैं। एक बुलंद व बरतर जात और हर तरह की नुक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने इब्नाए जिन से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। याद रखो कि इंसान इसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने पर कादिर हो। मोहब्बत के बगैर कोई मार्फत नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सके और उसको जान पाए। जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं। इसी लम्हाए मौजूद में जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी हम नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोज़ख की लपेटों की जद में होते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है, उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकनियत नाजिल हो जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अबदियत के असरार से हमकनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे इस राह ने कुछ ना कुछ पुख्तगी ना अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो तुम्हारा जाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हम में से हर एक को एक काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे आमाल उसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो,
کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے۔ ایمان ایک تدریجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے، تا وقت یہ کہ انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر باز گشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے۔ جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی۔ چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات منہ سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گمبھیر بنا دے گا، اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے، بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو۔ 40 دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات منہ سے نکالو، تم دیکھنا کہ 40 دن بعد ہر شے مختلف محسوس ہوگی، کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھتے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر ان قریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہو اور کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں، ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ جزو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے، اور ہر صالح اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر شے تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی یا جسمانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مخصوص تعریف، یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آب سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کائنات ایک وجود واحد ہے، یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ ہم سب جانے انجانے میں ایک خاموش مکالمے کا حصہ ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو،
नरमी और शफकत का बर्ताव रखो। किसी की पीठ पीछ उसकी बुराई मत करो, ख्वाह एक ही है, जरर सा जुमला ही क्यों ना हो। अल्फाज जो एक बार हमारी जबानों से निकल आते हैं वो कभी फना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वसअत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त में वापसी हम तक आन पहुंचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ हम सबको एक इज्तमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सबके होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के उसूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक जर्रा भी अपना रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहता। लोगों की साजिशों, धोखाधड़ियों और चालबाजियों का खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाजत के बगैर नहीं हिलता। बस अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। कोई हर्ज नहीं अगर जिंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपना तर्ज जिंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूं? अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरते हुए दिन के मुसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मुकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए, नया जन्म लेते रहना चाहिए। और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। जिंदगी तो एक उधार की मानिंद नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल। सिर्फ बच्चे ही असल हकीकत की बजाय खिलौनों से बहलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरिश्ता होते हैं या बेकदरी से उन्हें तोड़ डालते हैं। इस जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मतवाज़न और नर्म होते हैं। सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिमत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। वो इल्जाम के जवाब में इल्जाम नहीं लगाता और कोई उसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता के गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नजदीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो खुद अपने नफ्स से मौदूम है, चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद साथ की जलवा नुमाई है। तकदीर का यह मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोई कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और उसके 40 मुख्तलिफ दर्जात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा मुआवजा ना किया जा सके, लेकिन इस साज से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है।